Hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School online classes. Students, in today's class, we will discuss about RMS exam 2023. And here we are going to discuss English portion of this exam, class 6, right? And as you know that, हमें कितने क्वेश्चन मिले थे आरएमएस में? ये पेपर बहुत इजी था, 50 क्वेश्चंस थे और इतने क्वेश्चन रिपीट हुए, इतने क्वेश्चन हमें रिपीट हुए जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं. Just one of the best thing, most easiest paper we can see, correct? So let's start discussing. So first question जो है हमारा क्या रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एंड बहुत छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया है, ऐसा कोई बहुत बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं था या बहुत डिफिकल्ट नहीं था, राइट? द पैसेज इज अबाउट बचेंद्री पार्क, राइट? So let's start reading the questions first. So first question is, which mountain surrounded Bachendri's hometown? Himalayas, Alps, the mountains and Mount Everest. कौन सा था? ऑप्शंस हैं, पैसेज पढ़ के क्लियर करेंगे. What did she want to become on growing up? क्या बनना चाहती थी? चलो आंसर्स जो हैं हम पैसेज पढ़ के ही देखेंगे. पहले क्वेश्चंस को एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है? Why did she receive a lot of discouragement? And what was the reaction of Bachendri's family regarding her choice of career? Whether they are supportive or not, ये हमने passage पढ़ के देखना है. And what was the childhood dream of Bachendri? Then let's start reading the passage now. So Bachendri's story stand as an example of how going against your family's wish can be hard but important from time to time. While surrounded by the Himalayas towering around her hometown, she intended to climb it one day and forced on becoming a professional mountain climber. Moreover, she received a lot of discouragement for being a girl trying to take on such a physically challenging path. This only fueled her passion. She was selected to be part of an expedition to the top of Mount Everest, and she braved being buried in snow, fierce icy winds, and even losing sensations in her toes. She was one of the few who finally made it to the top, creating history in being the first Indian woman to reach the summit. बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज था. सो क्वेश्चंस जो है इनके आंसर बिल्कुल हमें सामने कैसे परोस के दिए हुए एक तरीके से, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच माउंटेन सराउंडेड Bachendri's town? सो बहुत क्लियर आंसर हमारे सामने था, ठीक है? कौन सा था? इट वॉज हिमालय, राइट? द हिमालय, ऑप्शन ए. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, what did she want to become on growing up? No, she don't want to become doctor, athlete, or engineer. She wants to become professional mountain climber. Next. Question number 3. Why did she receive a lot of discouragement? बच्चे पैसेज में लास्ट में हमें मेंशन है, because she was a girl child. What was the reaction of Bachendri's family regarding her choice of career? Of course, they were not happy. जो कि हमें पता लगा पैसेज को पढ़ने से, राइट? सी. नेक्स्ट, व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ बचेंद्री? क्या ड्रीम था? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये सेम ही ऐसा है, टू क्लाइम द माउंटेन वन डे. शी वांट टू बिकम अ माउंटेन क्लाइंबर. सो उनका ड्रीम भी यही रहा होगा, टू क्लाइम द माउंटेन वन डे, राइट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज अ प्रीपोजिशन. ये किसका है? प्रीपोजिशन का है. मधु इज वरीड डैश द टेस्ट बिकॉज शी थिंक दैट शी विल फेल द टेस्ट. तो वरी किसी चीज के लिए हुआ जाता है, तो वरीड अबाउट द बच्चे. नेक्स्ट, वी नीड टू फिल द सुटेबल वर्ड. He has dash knowledge of the language. Now, language is, as you know, that it's uncountable.
and lot, many, few. These three options are used for countable. So we have only one option left, which is little. He has little knowledge of the language. Next question number 8. Choose the option which can replace the word in block letter in the following sentence. Okay, हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो रिप्लेस कर सकता है. ठीक है, तो the test includes compulsory essay question. कंपल्सरी यानी कि वो चीज जो करनी ही पड़े. करेक्ट. हम फोर्स्ड कह सकते हैं, अफेबल नहीं कह सकते, नॉट अटेम्प्टेड. ऑप्शनल तो होता है कि चॉइस दी जाए. राइट. नेक्स्ट we need to fill a suitable pronoun here. They were angry with dash of their silly mistake. Now they subject है, वो angry हैं किसकी? उनकी silly mistake की. तो they were angry with themselves. This is reflexive pronoun बच्चे. ठीक है, कि सब्जेक्ट ने एक्शन कर रहे हैं किसके लिए? खुद के लिए. लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट हमें इस पेपर में सिनोनियम काफी पूछे गए हैं, सिनोनियम एंटोनियम. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक सिनोनियम है कि करेक्ट मीनिंग ऑफ द सिनोनियम एडवाइस. सो एडवाइस का काउंसिल, इसका मतलब तो होता है बच्चे एन एडवाइजरी. ओके, प्रैक्टिस नहीं हो सकता, प्रपोजल नहीं हो सकता. काउंसिल विच मीन्स सलाह देना, सलाह. राइट, ये काउंसिल मीन्स सलाह. ओके, तो वो हमारा सिनोनियम बन सकता है. नेक्स्ट, माई सिस्टर डैश फ्रॉम मीरूथ रिसेंटली. नाउ बच्चे, रिसेंटली मतलब एक्शन अभी अभी हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कहें तो. पर माई सिस्टर के साथ हैव नहीं लग सकता. बिल्कुल, यहां होना चाहिए था हैज क्रॉस्ड अकॉर्डिंगली, बट हैज इज नॉट हियर. सो दिस कैन नॉट बी आवर आंसर. सो हम इसको इस वक्त के लिए चूज करेंगे बी को. माई सिस्टर क्रॉस्ड फ्रॉम मीरूथ रिसेंटली. Next, question number 12. Do you see dash blue sky? Here we are talking about specific thing, the blue sky. ठीक है, और एन नहीं लगेगा. Do you see the blue sky? Next, the class was not held as dash students were present. ठीक है, बच्चे नहीं है तो क्लास नहीं. ठीक है, स्टूडेंट्स आर काउंटेबल. एनी लिटिल नहीं लगेगा. अ फ्यू मतलब थोड़ा, द फ्यू मतलब स्पेसिफिक. नेगेटिव वर्ड चाहिए, सो वी विल यूज फ्यू, मतलब जीरो के बराबर, कोई बच्चा नहीं है. There was no, the class was not held as few students were there. Synonym of ward. So ward means क्या होता है? Promise to do specific thing. So synonym क्या बन गया? Promise. Okay. Next. Question number 15 is again we have synonym satisfaction. ठीक है, synonym of satisfaction. Satisfaction का क्या synonym होगा? Content. So contentment कह सकते हैं, state of happiness and satisfaction. So बिल्कुल B is the most appropriate answer here. Next हमारे पास है again synonym of courageous. Courageous means बहादुर. So we can say brave, मतलब ready to face. ठीक है, ready to face and endure danger. Correct, brave. Of course, scary, happy और delicious नहीं होने वाला. Right. Next, fill in the blank with correct adjective fill करना है. There is dash water in the bottle. ये हमने पेपर में, मतलब इनमें से लगभग ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है कि ऐसा जो हमने नहीं किया हुआ. चाहे हमारी वर्कशीट है, हमारे सैंपल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर से हमें आए हैं, बट ये सारी चीजें हमने क्लास में बहुत ही क्लियरली डिस्कस की हुई हैं. सो आई होप कि आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस चीज में, कि बहुत इजी पेपर था. देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल, तो क्या होगा? वाटर इज अनकाउंटेबल, सो लार्ज नहीं लगा सकते, फ्यू स्मॉल तो नहीं लगा सकते. सो देयर इज सम वाटर इन द बॉटल. हमने जहां एग्जाम्पल की थी वहां जग था. राइट, अब मुझे याद आ रहा है. राइट. ओके, अगेन हमें फिर से एक और क्वेश्चन आया 18 कि रिप्लेस करने को दिया है
वर्ड, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव माने माफ करना। सो ये अगेन सिनोनियम में बन जाते हैं हमारे। प्लीज पार्डन मी, पार्डन मीन्स भी क्या होता है, माफ करना। नेक्स्ट, हैव यू सीन डैश 1 रुपी नोट? ना, ओ देख के, ओ से स्टार्ट होता कह के वॉल से स्टार्ट हो रहा है, हमें एन लगा देना चाहिए? नहीं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ओ हैज टू साउंड, ओ एंड वो is considered as consonant sound, so correct। have you seen a 1 रुपी नोट होगा, एंड बिल्कुल भी नहीं होगा। होपफुली आप अ करके आए हो, है ना। नेक्स्ट, डैश कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन से कहलाए जाते हैं? ऑफकोर्स स्टेटमेंट नहीं, कमांड और क्वेश्चन वाले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक्सक्लामेशन कहलाता है एक और, राइट। नेक्स्ट, अगेन आपके पास एक वर्ड है रिप्लेस करने के लिए है, द थीफ विल कन्फेस हिज गिल्ट सून। कन्फेस मीनिंग किसी चीज को मान लेना, सो मानने का हम कहेंगे द थीफ विल एडमिट हिज गिल्ट सून, राइट। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 अगेन रिप्लेस करने के लिए आया है। दे विल श्योरली इग्नोर यू। इग्नोर का रिमेंबर रिप्लेस नहीं कर सकते, नोटिस नहीं कर सकते, इंडिकेट तो बिल्कुल नहीं। ओवरलुक होता है तो ये देखे को अनदेखा कर देना, सो दे विल श्योरली ओवरलुक यू कर सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्पीकर विल बी कमिंग डैश, द स्पीकर विल बी कमिंग डैश कार। किसी चीज पे आना बाय होता है ना, व्हीकल से कोई आने की बात नहीं। तो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन की तरह है एक, प्लीज बी क्वाइट, आई डैश। मैं काम कर रहा हूं तो वॉज वर्किंग नहीं होगा, हैड वर्कड या हैव वर्क नहीं, आई एम वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया डैश एवरीवन टू डू हिज हर ड्यूटी। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, इंडिया एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं। इंडिया एक्सपेक्ट्स, करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जंबल वर्ड है हमारे पास, बहुत इजी आए हैं। 26, so at were not school they yesterday, so they subjective pronoun है, that mean clearly shows कि sentence will begin with D, ठीक है। तो इससे ही हमारे ए और सी तो कैंसिल हो गए सीधे सीधा। दे के बाद में हमने क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो दे वर नॉट कहाँ पे, एट स्कूल yesterday, so answer will be D, B, A, C, E। B is the right answer. They were not at school yesterday. Right? Next, question number 27. This is one word substitution बच्चे। A building for storing thrashed grain. ये हमने क्लास में भी किया हुआ, बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन हमने कहा था ग्रेनरी, किया हुआ है। दिस क्वेश्चन वाज इन आवर पीपीटी। ओके, सिनोनियम, अगेन सिनोनियम आया, बहुत क्वेश्चन सिनोनियम से आए हैं बच्चे। डिसाइड का पूछा हमसे, डिसाइड का सिनोनियम। सो डिसाइड मीन्स होता है डिटरमाइन, तय कर लेना। कोई चीज अगर चूज कर लेते हैं वो भी डिसाइड हो जाता है। सेटल करना भी होता है, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा, बिल्कुल। किड इज लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन। अच्छा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, so I have told you earlier कि we will use definite article the in this case, right? Next, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चे है जैसे क्या, इन्होंने कहा है कि चेंज द नरेशन ऑफ फॉलोइंग। नरेशन मीन्स यहाँ पे हो जाता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सो वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, अगर नरेशन के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ हैड ऑलरेडी डन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं गिवन है हैड भी। अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव का फॉर्मेट लिया हुआ है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। सो अगर हैज हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म है हमारे पास, सो इसको चेंज करेंगे, हैज हैव बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। कॉज सभी ऑप्शन में देखे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, सो ये एक्टिव पैसिव का है। सो द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस। ऑफकोर्स इससे नहीं होने वाला है, हैज बीन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आगे नहीं जाने वाला, हैज ऑलरेडी बीन होना चाहिए था।
यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हैड ऑलरेडी बीन करते और ये वाला चेंज नहीं होना था, फिर अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रहता तो। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन एरर ही कह सकती हूँ कि बोला नरेशन हुआ है और चेंज इन्होंने एक्टिव पैसिव कर दिया है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से, दे वर एंग्री विद द डैश ऑफ देयर सिली मिस्टेक। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 भी यही था, क्वेश्चन नंबर 31 भी ये सेम है। दे वर एंग्री विद देयर with themselves for their silly mistakes। रिपीट हुआ है हमारे यहाँ से, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, से बना themselves, cause। And question number 32, need to fill a suitable preposition। Okay, I will meet him that Saturday afternoon। Now Saturday, here we are talking about a day, and I have told you कि day के साथ क्या लगता होता है, on। ठीक है, सो ऑन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जंबल वर्ड है, ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया है बच्चे। शी वायलेंटली द स्टॉर्म रॉक। सो ये प्रीवियस ईयर से है हमारा, तो क्या बनेगा? पहली बात तो द शिप बन जाएगा, राइट। सो द शिप, तो नहीं, द शिप नहीं, सॉरी, द स्टॉर्म बनेगा, बिल्कुल, द स्टॉर्म, क्योंकि ऑफकोर्स द शिप तो रॉक नहीं करेगा, द स्टॉर्म, देन रॉक, यानी कि DECAP, द स्टॉर्म रॉक द शिप वायलेंटली। तो ये आंसर बन गया हमारा कौन सा? डी, राइट। ये प्रीवियस ईयर से है बच्चे। देन क्वेश्चन नंबर 34, अगेन जंबल वर्ड। फॉर टाइगर अ नेचुरल, इट इज होम प्रोटेक्टेड। सो इट इज से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस, राइट। सो अगर मैं सी से देखूं तो ये ऑप्शन गए हमारे, इट इज, सी लिखा। देन इट इज अ नेचुरल, नेचुरल व्हाट? इट इज अ नेचुरल प्रोटेक्टेड home for tigers. So answer is A, right? Then क्वेश्चन नंबर 35। इस पेपर में बच्चे हमारे बहुत से टाइपिंग एरर आए हैं, ठीक है। तो आई होप कि जितने टाइपिंग एरर है उस अकॉर्डिंग हमें ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है, द टेररिस्ट डैश डेड बाय द कॉप। अब मैं अगर यहाँ से बाय से देखें तो ये हमारा पैसिव फॉर्म है सेंटेंस का। तो पैसिव फॉर्म में आपको पता है हमारा सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा रहता है हमारे पास, है ना। सो हम करेंगे द टेररिस्ट वॉश शट बाय द कॉप। नेक्स्ट, अगेन ऑपोजिट पूछा है, रिप्लेसमेंट नहीं है, ऑपोजिट पूछा है, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड। शी इज नोन फॉर हर पोलाइट नेचर। पोलाइट होता है बहुत ही सभ्य नेचर, सो उसका ऑपोजिट हो जाएगा रूड, बिल्कुल। नेक्स्ट, dash are sometimes called declarative sentence। Declarative sentences are used to convey statements। It's also known as statements। It's also known as affirmative। So आंसर हमारा क्लियर है, बिल्कुल। Then 38, the mother dash food for us every day। Every day is here giving us hint कि एक्शन रोज होता है, दैट मीन सिंपल प्रेजेंट हो गया है, जो एक्शन हमारा रूटीन का पार्ट है, जो हैबिट है, राइट। सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नाउ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई वी विल यूज एस। सो कुक्स हमारा बहुत ही क्लियर आंसर बन जाता है। Now again synonym पूछा है delectable का। Now what's the meaning of delectable? जो बहुत ही tasty, yummy हो, so we can say delicious, of course। Class will be held dash Monday। Again दे दिया है इन्होंने और on लगाने को बोला। प्रीपोजिशन बहुत इजी आया बच्चे, इनफैक्ट पूरा पेपर ही बहुत इजी रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। सो करेक्ट स्पेलिंग है, ये हमने वर्कशीट में किया भी हुआ है। व्हाट्स द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ होरोस्कोप? इट्स सी बच्चे, HOROSCOPE।
Again, we have jumble word बच्चे. Of India, modern man called the first he is. तो सेंटेंस हम ही से ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं, तो डी से आगे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़नी हमें, पढ़ने की भी, कि सारे आंसर क्रॉस कर सकते हैं हम बहुत आराम से. कि ही इज, देन व्हाट, he is rightly see called the first modern man of India. बिल्कुल, this will be our correct answer. 43, यहाँ पे हमें करेक्टली मैच इडियम बोला बच्चे, ठीक है. करेक्टली मैच्ड इडियम में क्या है बच्चे, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ये इडियम है, एज निबल एज अ स्क्वल होता है. यहाँ पे बहुत टाइपिंग एरर आ रहे हैं, तो हम ये सोचे कि अगर यहाँ पे टाइपिंग एरर है, एज निबल एज अ होता है, और यहाँ पे क्वल की जगह एस और साथ में लगा होता है, एज अ स्क्वल, तो ये हमारा करेक्ट है. यहाँ पे एज कोल्ड एज स्नो दिया है, एज कोल्ड एज आइस होना चाहिए था. करेक्ट. सो हम अभी तक के लिए इसको अपना करेक्ट आंसर मानते हैं, क्योंकि बाकी कोई सा भी करेक्ट इडियम नहीं गिवन है, ठीक है. हालांकि टाइपिंग एरर इसमें भी है. ओके, नेक्स्ट. वी कैन डैश एरोप्लेन. नाउ वी आर, the noun is starting with the consonant sound, as you know that he is flying, he can fly an airplane. Next, question number 45. अगेन जंबल वर्ड है हमारे पास बच्चे. सो कोल्ड रोज इज द क्वीन फ्लावर ऑफ. सो रोज से हमारा सेंटेंस बिगिन होगा, रोज इज. सो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमारा करेक्ट आंसर हमारे सामने है. बहुत इजी मेथड है, सब्जेक्ट सबसे पहले फाइंड करो. रोज इज, देन व्हाट, रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, दैट्स इट. आंसर बन गया हमारा. सी, my friend dash the purse last night. Last night is giving us the hint of past tense बच्चे, right? तो सिंपल पास्ट में हम क्या लगाते हैं, वो सेकेंड फॉर्म. सो लॉस्ट हो गया आंसर, राइट. नाउ मिस्टर चैटर्जी wants to be dash MLA. Now MLA, as I told you, abbreviations जब हम इंडिविजुअल बोलते हैं, एम म नहीं बोल रहे, अ साउंड पहले आ रहा है, तो एन MLA. ये हमने वर्कशीट में और चोरी करते टाइम किया हुआ है सारा. The treasure is buried dash the coconut tree. Of course, bury है तो वो किसी चीज के नीचे है, तो over in on तो नहीं होगा, under रहेगा. Correct spelling of appreciation क्या रहेगा बच्चे, इस B, APPRECIATION, appreciation. नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्या है कि करेक्ट जेंडर पूछा गया है. यहाँ पे एक रहेगा कि मास्ट, ये लिखा होता, तो इसका करेक्ट जेंडर ये बनता है मार्शनेज. ओके, सो अभी के लिए हमारा ये करेक्ट आंसर इसका यही रहेगा. ओके, होपफुली दिस पेपर इज क्लियर टू यू. तो बहुत इजी था, सो आई थिंक आपको सबको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें. फिर भी कोई क्वेरी है, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.